Today we are going to start chapter 4 of your textbook from the Diary of Anne Frank, Standard 10, English chapter 4 from the Diary of Anne Frank. This chapter has a great historical value. Do you know who was Anne Frank? Do you remember Hitler, Nazi Germany? If you are interested in history, you must have heard about all these people. नाजी जर्मनी अगर याद है वो मंजर, you know, the people were massacred, they were taken to the slaughterhouses, cleansing of the race. So this Anne Frank was one of the victims of this Nazi cruelty. Full name Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929, February, and she died on March 1945, was a German-born Jewish girl. And you know that Hitler hated Jewish people very much. And that's why he had killed thousands of Jewish people together. He was taking them to the concentration camps and giving them poisonous gases and killing them. So, and this we came to know at the end of the Second World War. Had the Germany not been defeated, we would never have come to know about this. So let us say what is there. अब ये एनी फ्रैंक की मैं बात करूँ तो ये एक जूइश गर्ल थी और नाजी जर्मनी से डर लगता था, तो इनके पापा और दूसरी एक इनकी फैमिली और इनके पापा के फ्रेंड की एक फैमिली ऑफिस के एक हिस्से में रहते थे, जो ऑफिस का एक हिस्सा जो था जहाँ एक हिडन रूम थे, हिडन 3-4 रूम थे, वो वहाँ छुप छुप कर रहते थे. तो ऐसे ये कई लंबे समय तक रहे और उसी घर में, एक ही घर में कई सालों तक रहने की वजह से वो बोर हो जाती थी और उसने डायरी लिखनी स्टार्ट की थी. और ये जब वो रूम में गई, मतलब छुपने वाले रूम में गई, उसके पहले ये डायरी उसको मिली थी और उसने उसमें कुछ देखा है और ये डायरी वहाँ भी उसने लिखना शुरू की थी, कंटिन्यू रखी थी. और जब बाद में ये फैमिली भी पकड़ा गया नाजी जर्मनी, मतलब नाजी लोगों से, और फिर ये लड़की के बाद में ये लड़की भी डेथ हो जाती है, लेकिन बाद में उसके पापा के हाथ में ये डायरी आती है. एंड एट दैट टाइम द फादर he thought that this is the very important document of the Nazi cruelty and I must publish, and the book was published. ये एक पूरी बुक है एनी फ्रैंक, उसकी ऑटोबायोग्राफी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. Whenever you get time, you should read that. So her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained over power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into Netherlands. And as persecutions, as per the result against the Jewish population increased, the family went to the hiding in July 1942. As I told you, this family had to go hiding because of this Nazi cruelty in June 1942. In her father's auto, उनके पापा का नाम ऑटो फ्रैंक था, उनकी ऑफिस में ये लोग रहते थे. एंड आफ्टर 2 years in hiding, 2 साल ये हाइडिंग में रहे थे. द ग्रुप वॉज बिट्रेड, इनको चीटिंग करके इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मरने के लिए. सिस्टम वेयर एनी डाइड एंड ऑफ टाइफus इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक. एंड उसकी सिस्टर की भी डेथ हो गई, उसकी भी डेथ हो गई. और फादर ऑट्टो द ओनली सर्वाइवर, वो ग्रुप में से सिर्फ उनके पापा ऑट्टो बचे थे. एंड ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड एंड ही फाउंड द डायरी दैट हैड बीन सेव्ड. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. This is a very interesting diary of Anne Frank. Whenever you get the time, you should read that. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. जब वो 13वीं बर्थडे थी तब उसको ये दी गई थी. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और वो 12 जून से उसमें हमें उसके लाइफ के रिकॉर्ड मिलते हैं until the final entry of 1st August 1944. So it was eventually translated from its original Dutch. वो डच में से बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और ये बहुत बड़ा प्रूफ भी था नाजी क्रूअल्टी का.
There have also been several films, television, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi. मतलब नाजी क्रूअल्टी, मतलब नाजी जब जर्मनी में रूल कर रहे थे तो वहाँ की लोगों की हालत क्या है, ये डायरी में से हमें पता चलता है. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust मतलब एक साथ कई लोगों को मार दिया जाता था. That was called Holocaust. अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की. So, what she has written. Writing in diary is a really strange experience for someone like me. कि मेरी अब ये खुद उसके वर्ड में लिखा गया है, एनी फ्रैंक के वर्ड में. वो लिख रही है कि डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनिमल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल. कि अभी या बाद में भी एक 13 साल की लड़की जो लिख रही है उसमें किसको इंटरेस्ट होगा. लेकिन शायद बेचारी को पता नहीं था हिस्ट्री एक अलग ही करवट लेने वाली थी, और उसकी लिखी हुई ये बातें, छोटी छोटी बातें, पूरी दुनिया कई सालों तक पढ़ने वाली थी, और कई स्टूडेंट्स भी उसको पढ़ने वाले थे. ओह वेल, इट डजंट मैटर. तो अभी क्या होता है, अभी की चीज़ें क्या असर करती हैं, वो फ्यूचर में जाके पता चलता है. आई फील लाइक राइटिंग and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest, and I want to write everything. जो भी मेरे दिल में आता है मैं लिख देता हूँ. Paper has more patience than people. आप किसी से कुछ बात करना चाहोगे, लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वक्त नहीं होता है, वो आपकी बात को इग्नोर करते हैं. लेकिन पेपर पे आप लिखते हो तो पेपर ध्यान से आपकी बातें सुनता है, सब कुछ सुनता है, पेशेंस होते हैं उसमें. I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed. And I was sitting at home with my chin in my hands. मैं एक दिन डिप्रेस भी थी, bored and listless, wondering whether to stay in, कि घर में रहूँ या बाहर जाऊँ, ये सोच रही थी. I finally stayed where I was. मैं वही रही, brooding. मैं सोच रही थी. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read, मैं मेरी डायरी किसी को पढ़ने देना नहीं चाहती हूँ. Notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend. जब तक मुझे real friend नहीं मिले, it probably won't make a big difference. तब तक मैं किसी को ये नहीं दूंगी. नो, आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. लेकिन मुझे लगा कि मुझे कोई फ्रेंड होना चाहिए, चलो मैं डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लेती हूँ. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन. कोई मानेगा नहीं कि 13 साल की लड़की अकेली हो सकती है इस दुनिया में. एंड आई एम नॉट. मैं वैसे अकेली नहीं हूँ, मेरे बहुत लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे 16-year-old सिस्टर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली. मेरी एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू, ऊपर से ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है. आई नीड. कई बार बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारी दिल की बात समझे वैसा शायद एक भी नहीं होता है. शायद एनी के साथ यही हुआ था. All I think about when I am with friends is having a good time. Friends के साथ अच्छा लगता है. I can't bring myself to talk to anything but ordinary. रोज की लोग बातें करते हैं. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault and we don't confide in each other. हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. To enhance the image of this long-awaited friend, मतलब ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जो कई दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी, उसकी इमेजिनेशन पूरी करने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ द वे मोस्ट पीपल और लोग जैसे लिखते हैं ऐसी सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं लिखूँगी. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी अ फ्रेंड. मैं किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड को कुछ मैं बता रही हूँ और लिख रही हूँ, वैसे मैं बताऊँगी. और इस डायरी को मैं नाम दूँगी किट्टी. सो शी नेम्ड हर डायरी एज किट्टी. क्या लिखा था? Since no one would understand a word of my stories, Kitty, if I were to plunge right in. कोई भी नहीं समझेगा अगर डायरेक्ट में लिखना स्टार्ट कर दूं. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच. पहले मैं मेरी लाइफ के बारे में आपको कुछ बता दूं. किट्टी को बताती हैं, हम भी सुन रहे हैं कि वो अपनी लाइफ के बारे में हमें बताती हैं. मच आई डिसलाइक डूइंग सो. माई फादर, लाइक anyone's father, my most adorable father,
I have ever seen. पापा सबको प्यारे होते हैं, एनी को भी थे, and he married her mother when he was 36 and she was 25. See the difference. My sister, she was born in Frankfurt in Germany in 1926 and I was born on 12 June 1929, and then she lived in Frankfurt until she was 4 years old, and then her father immigrated, मतलब उसके पापा वहाँ से हॉलैंड चले गए 1933 में, और my mother जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, शी ऑल्सो वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वाइल मार्गोट और मैं आर्चन भेज दिए गए हमारी दादी माँ के साथ आचन. वी वेंट टू आचन विथ आवर ग्रैंड मदर. और दिसंबर में मार्गोट भी हॉलैंड चली गई, मैं फरवरी में गई, एंड व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल अ बर्थ प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मैं उसके बर्थडे टेबल पर मुझे रख दिया गया था कि जैसे मैं उसके लिए गिफ्ट थी. कई बार छोटे बच्चे बड़े भाई बहन के लिए गिफ्ट होते हैं, लेकिन उनको तो परेशानी लगते हैं हमेशा. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. मॉन्टेसरी स्कूल में मैं 6 साल तक रही, और देन आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपेरस, जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी. और जब मैं उस स्कूल से निकली तो हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, एंड दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. वो फेयरवेल मतलब वो जुदा होना, वो दिल तोड़ने वाली बात हो गई थी. हम दोनों को जुदा नहीं होना था. इन द समर ऑफ 1941 मेरी दादी माँ बीमार हो गई और उनको एक ऑपरेशन करना पड़ा, और इसीलिए मेरी बर्थडे पास हो गई विदाउट एनी सेलिब्रेशन. ग्रैंड माँ की डेथ हो गई जनवरी 1942 में, और किसी को पता नहीं था मैं उनको कितना चाहती थी, कितना मिस करती थी. सो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1940 was intended to make up for other. Grandma's candle was lit along with the rest. और ये बर्थडे सेलिब्रेशन मैं उनके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी एक कैंडल भी रखी थी बाकी कैंडल के साथ. हम चारों, मतलब मैं, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, वी वर डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डे. अब मेरी डायरी में मैं लिखना चालू करती हूँ. आई जस्ट गिव द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ टू यू. नाउ आई विल स्टार्ट. शी स्टार्टेड राइटिंग ऑन सैटरडे 20 जून 1942. उसने अपनी डायरी को भी एक दोस्त की तरह एड्रेस किया. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन बूट्स. मीन्स दे आर मूविंग हियर एंड देयर इन फियर. सब लोग डर के मारे घूम रहे हैं. आप लोग भी ऐसा करते होंगे जब रिजल्ट आने वाला होगा. क्या होगा, क्या होगा, पास होगा, फेल होगा. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन द विच टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form. हंसने का या रोने का पिक्चर होता है रिजल्ट. कौन आगे जाएगा नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, कौन रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. लोग एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे. ये उसके फ्रेंड्स के शॉर्ट नाम है, यहाँ GN है, CN है. तो इनकी एक दोस्त थी GN and alap ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jex, who have staked their entire holiday savings on their bed. इन दोनों ने शर्त लगाई थी और एंटायर हॉलीडे के जो भी पैसे थे वो शर्त में लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट सब एक दूसरे से बोल रहे थे, यू आर गोइंग टू पास. नो, मैं पास नहीं होंगे. नो, आई एम नॉट. यस, यू आर. नो, आई एम नॉट. आप जैसे करते होंगे अपने दोस्तों के साथ. इवन जी's pleading glances, my angry outbursts can't calm them down. मैं जी उनको गुस्से से बोलती थी, रिक्वेस्ट करती, मैं उनको बोलती थी, फिर भी वो समझते नहीं थे. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. हमारे स्कूल में इतने सारे डफर हैं कि वो आधे से ज़्यादा केप्ट बैक हो सकते हैं, मतलब लास्ट क्लास में ही रख सकते हैं. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. ये टीचर के लिए बहुत ज़्यादा कह दिया. दे आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. वो कब किसको पास करेंगे, कब फेल करेंगे, पता नहीं चलता. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स. मेरी जो दोस्त थी उसके लिए मैं वरीड नहीं थी. एंड माई सेल्फ ऑल्सो विल मेक इट. हम लोग पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज अबाउट मैथ्स. मैथ्स इज समथिंग शी हेटेड. इवन आई हेटेड. आई हैड 36 का आंकड़ा विथ मैथ्स. यू मस्ट बी लविंग इट. एनी वे, ऑल वी कैन डू इज वेट.
क्या होगा रिजल्ट. Until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with my all teachers. हमारे 9 टीचर्स है, 7 men and 2 women. मिस्टर किसिंग, बहुत ही अजीब नाम है, मिस्टर किसिंग नाम था. द ओल्ड फॉगी, मतलब द ओल्ड फैशन पर्सन, वो मैथ्स पढ़ाते थे. एक तो मैथ्स और वो भी पुराने तरीके का इंसान. ओनली गॉड कैन सेव हर. वॉज एनॉयड विद द 4 एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, उनको गुस्सा आता था. बहुत सारी वार्निंग्स वो मुझे देते थे और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे. एक बार मुझे ऐसे दे दिया, ही आस्क्ड मी टू राइट एन एसे ऑन सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. अब चैटर बॉक्स मतलब बातें करने वाली इंसान. अब उसके बारे में क्या लिख सकती हूँ. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, कि बाद में मैं उसके बारे में सोचूंगी. आई जॉटेड डाउट द टाइटल इन वन. मैंने सिर्फ टाइटल लिख दिया और मेरी बैग में रख दिया और मैं चुपचाप बैठी रही कि चलो मैं अब नेक्स्ट टाइम कुछ सोचूंगी. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. अचानक मेरी नज़र पड़ी कि यार वो टीचर ने उस समय जो होमवर्क दिया था वो मुझे करना बाकी है. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट. मैं सोचने लगे इस सब्जेक्ट में और क्या लिखवाई. चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन विच मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग. कुछ लोग इतने भूखे होते लिखते लिखते पेन चबाने लगते हैं या सोचते हैं क्या करता है पता नहीं चलता. एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लीव. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई भी aimlessly लंबे लंबे वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स लिख के पेज भर सकता है. But the trick was so come up with convincing arguments to prove that necessity of talking. मुझे ये बताना था कि बातें करनी क्यों जरूरी है, ये मुझे समझाना था. I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages. उन्होंने ऐसे बोला था, मैंने 3 पेज लिख के दे दिया मिस्टर किसिंग को, लो पढ़ो, ये असाइन मी. And I was satisfied. I argued that talking is a student's trait. कि बातें करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है. And that I would do my best to keep it under control. लेकिन मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. बच्चे हैं, बातें तो करेंगे. But that I would never be able to cure myself of the but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much. पर मैं अपनी जो हैबिट कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी. Because my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits मतलब जो qualities आपको अपने parents से मिली हैं वो आप बदल नहीं सकते. Because my mom was talking too much, I also am talking. Mr. Kissing had a good laugh at my arguments. वो मेरी arguments पर हंसे. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, जब मैं फिर से बात करने लगी उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया और उसमें था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इसका मतलब होता है एक ऐसा चैटर बॉक्स कि जिसको हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते. मतलब ये एनी के बारे में ही था. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. मैंने भी लिख के दे दिया. मिस्टर किसिंग 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, कुछ बोला नहीं. However, during the 3rd lesson, तीसरे लेसन के समय अचानक मैं बातें कर रही थी और वो गुस्से हो गए. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mr. Chatterbox. Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox. तीसरी बार था, पहले भी Chatterbox, then an incorrigible Chatterbox. Now ये अलग सा वही टॉपिक था. Quack 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 मतलब बोलते रहो, said Mr. Chatterbox. अब क्या करूँ. सारा क्लास चिल्लाने लगा, सब हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी. I had to laugh too. Thought I would nearly exhausted my ingenuity. मतलब मेरी ओरिजिनलिटी ऐसे लिखने में मैंने ख़त्म कर दी थी. चैटर बॉक्सेस के बारे में सब कुछ लिख दिया था यार, मेरे जो दिमाग में आया था. It was time to come up with something else. अब मुझे कुछ और लिखना था. Something original. My friend Sunny, who is good at poetry, जो मेरी दोस्त हैं और पोइट्री अच्छी लिखती हैं, she offered to help me to write essay. कि मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड वर्स के पोइटिक फॉर्म में लिख के देती हूँ. और मैं खुशी से पागल हो गई. एंड आई जम्प फॉर जॉय. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी. वो मुझे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट से मुझ पर एक मजाक करना चाहते थे. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज इन. पर मैं चाहती थी कि वो जोक उनका बन जाए. मैंने अपनी पोएम फिनिश की एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट अ मदर डक. वो एक मदर डक पर थी और फादर स्वान पे थी. विथ 3 बेबी डकलिंग्स.
जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु आर बीटन टू डेथ बाय द फादर, और जिसको पापा ने मार दिया बिकॉज दे क्वैक टू मच। अजीब सी कहानी लिखी थी इस लड़की ने। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, उन्होंने भी इस जोक को हंसने में निकाल दिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और कमेंट्स भी की, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से मुझे क्लास में बातें करने नहीं दी जाती हैं और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रारी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और मिस्टर किसिंग हमेशा जोक करते रहते हैं। योर्स एनी। सो यू कैन सी एक्सट्रैक्टेड मीन्स टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन, मतलब थोड़ा चेंज करके हमने इसको लिया है। ये पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये जब भी 10th में नहीं, 10th के बाद इस कहानी को आप पढ़ लेना। इस नॉवेल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। This chapter ends here and I hope you have understood it well. Thank you very much. We'll keep meeting for the next lectures, for the next chapters. I'll be teaching you the next lecture. I am your English coach Sandeep sir. Bye for now. Have a wonderful time.